हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द ट्रीज पोम, जिसे लिखा है एड्रीना रिच ने। ये पोम एक सिंबॉलिक पोम है जो कि रेफ़र की गई है हर उस विमन को जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ लीड कर रही है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में। अब वो विमन सारे रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स और चेन्स को तोड़ के बाहर निकलना चाहती है और जीना चाहती है और अपने ड्रीम्स को और अपनी फ्रीडम को अचीव करना चाहती है। तो लेट्स रीड द पोम एंड एन्जॉय इट। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या एक फॉरेस्ट बिना ट्री के हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम? इस पोम में ट्रीज कहाँ पे है? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ चले गए हैं? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रीज को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है। तो थ्रू आउट द पोम हमारी ट्रीज पर्सोनिफाइड है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Now, the poet is telling that the trees which were inside the house, now those trees are moving outside into the forest. In that forest which has been empty for a long time. There was no place for bird to sit. Why? Because there were no trees. Even there was no place for the insect to hide because of the absence of trees. Even the sun cannot hide its feet in the shadow of trees because of the absence of trees. The forest, which was empty throughout the nights, all the nights, now will be full of trees by the मॉर्निंग। इट मीन्स जो ट्रीज इनसाइड थे वो बाहर जा रहे हैं जंगल में। फॉरेस्ट काफ़ी टाइम से एम्प्टी है। रीज़न एक ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग्स हमारे घर के अंदर प्लांट्स को सजा लेते हैं, अब वो प्लांट्स बाहर जाना चाहते हैं। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, कौन से फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं जहाँ पे बर्ड नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि इस फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है। इंसेक्ट नहीं छिप सकते हैं। इवन जो सन है जो पूरे दिन आग उगलता है उससे भी अपने फीट को हाइड करने के लिए शेडो नहीं मिल पा रहा है। जो फॉरेस्ट एम्प्टी थे अभी तक, अब वो मॉर्निंग तक सारे भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ है वो घर से बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम रिपीटेशन देख सकते हैं क्योंकि ट्रीज़ का रिपीटेशन हुआ है। इसके अलावा हमारा फॉरेस्ट का भी रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पे इमेजरी क्या होता है? जब कोई वर्ड्स या फ्रेजेस पोएम में यूज़ की जाए और वो वर्ड्स और फ्रेजेस एक तरह का विजुअल इमेज क्रिएट करे तो उसे हम कहते हैं इमेजरी। जैसे मूविंग आउट, नो बर्ड कुड सिट, ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? इमेजरी। इसके अलावा यहाँ पे एंजॉयमेंट है क्योंकि एक पूरी लाइन है जो कि नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यूड है विदाउट एनी पंक्चुएशंस, राइट? ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks. Disengage means separate. In the veranda floor, the leaves strain means making efforts towards the glass. Which glass? Window glass. Small twigs stiff means hard with exertion means efforts. Long cramped means congested, boughs means branches of trees, shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed means half confused, moving to the clinic doors. In this stanza the poet uh, talk about the trees which wants to leave the house and they want to move to the forest. Okay, so the roots of the trees are working all night to free themselves or separate themselves from the crack on the veranda floor. The leaves of the trees are trying very hard. They are putting a lot of pressure on glass window so that they can break it and go outside. Even the small twigs have also become very hard. Why? Because they are also applying so much pressure to free themselves. And the larger branches are also shuffling under the roof because they have not got much growth. Why? Because they are under the roof. And they are also moving slowly from there. So as they are moving slowly, so they are looking like a newly discharged patient who has been discharged from the hospital just now and who is looking half shocked or coming to the outside world. तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी रात रूट्स काम कर रही है अपने आप को सेपरेट करने के लिए वरांडा फ्लोर के क्रैक्स से। जो लीव्स हैं वो भी एफर्ट्स कर रही हैं विंडो ग्लास को तोड़ के बाहर निकलने का।
यहाँ तक कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी हार्ड हो गई है, बहुत सारे एफर्ट्स करने की वजह से थक गई है। जो कंजेस्टेड बड़ी बड़ी बोज है वो भी रूफ़ के अंडर में शफल करने के कारण उनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है। वो सब स्लोली स्लोली बाहर मूव कर रहे हैं। कहाँ से? विंडो ग्लास से। कैसे मूव कर रहा है? जैसे कि एक नया नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है जो शॉक्ड होता है वापस पूरे वर्ल्ड को देख के, उस तरह से हो रही है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं रूट्स का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा लीव्स जो है वो भी मूव एफर्ट्स कर रही है, तो फिर से इनका भी पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे सिमिली है, क्योंकि ये जो लॉन्ग जो ट्रीज स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं उसे एक डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है। और हमारा लाइक वर्ड भी आया है, तो यहाँ पे क्या है? सिमिली। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forester from the house. यहाँ पे फिर से एंजॉयमेंट है। ओके, नाउ हमारी पोइट क्या कर रही हैं? द पोइट सेज कि शी वॉज सिटिंग इनसाइड हर हाउस एंड शी वॉज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, in which means in those letters she was hardly mentioning about the departure of the forest from her house. means वो लंबे लंबे letters लिख रही है, लेकिन उसमें hardly जो departure है forest का वो mention कर रही है। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, again enjambment. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. वो क्या देख रही है? She just looks towards the clear sky where the full moon was shining brightly, and she further says that like a voice into the room, the smell of leaves and lichen is what? Fungus or moss, that is also reaching to her. means the night is completely fresh and the moon is shining very bright, and the smell of leaves एंड लाइकन क्या होता है? फंगस कह लीजिए या मॉस कह लीजिए या काई जो जमती है वो। ओके, दैट इज़ ऑल्सो रीचेस टू द पोएट लाइक अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम्स ऑफ द हाउस। मतलब वो घर में बैठी है, डोर ओपन है वेरेंडा के लिए, लेटर्स लिख रही है, उसमें उसने डिपार्चर के बारे में मेंशन नहीं किया। वो देखती है नाइट बड़ा फ्रेश है, पूरा मून शाइन कर रहा है, स्काई ओपन है, उसे अभी भी लीव्स की और लाइकन की स्मेल आ रही है ट्रीज़ की, और ये स्मेल उस तक ऐसे पहुंच रही है जैसे कि रूम में वॉइस आती है। अब यहाँ पे देखिए लीव्स और लाइकन में एल का रिपीटेशन है, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया। और ये किस तरह से आ रही है इनकी स्मेल? जैसे कि एक वॉइस आती है। तो यहाँ पे स्मेल ऑफ लीव्स को कंपेयर किया है वॉइस से, तो यहाँ पे लाइक वर्ड भी आया, तो ये क्या हो गया है? सिमिली। इसके अलावा स्मेल ऑफ लीव्स का पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है, क्योंकि इसे ह्यूमन वॉइस से इसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है जो कि आ रही है पोइट के पास। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. फिर से यहाँ पे हम एंजॉयमेंट देख सकते हैं लास्ट टू लाइन्स में, बिगनिंग में भी। ओके, नाउ माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। नाउ जो पोइट का दिमाग है उसमें बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, उसे बहुत स्मेल भी आ रही है, जैसे वॉइसेस आती है ऐसी। तो हर ऑल द थॉट्स विल बी साइलेंट टुमारो। वाई? बिकॉज देयर विल बी नो ट्रीज इन द मॉर्निंग, बिकॉज ट्रीज आर मूविंग आउट टू द फॉरेस्ट इन द night, so there will be silence. Now the poet can hear the sound that the glass is breaking. And why glass is breaking? As we read in the last to last stanza, because twigs are also making efforts and leaves are also making efforts to move out from the window glass. So because of their efforts, glasses are breaking. So as window glass are breaking, window glass is breaking, so she is hearing the sound of window glass. The trees are stumbling forward. The trees hurry outside, so they are stumbling on each other. यहाँ पे ट्रीज़ का फिर से पर्सोनिफिकेशन और यहाँ पे इमेजरी भी है। देखिए ट्रीज़ आप इमेजिन करिए, विजुअल इमेज क्रिएट होता है कि ट्रीज़ जो है जल्दी जल्दी में बाहर निकल रहे हैं, वो एक दूसरे पे गिर रहे हैं वाइल मूविंग। स्टम्बलिंग मीन्स फॉल वाइल मूविंग। विंड्स रश टू मीट दैम। अब जैसे ट्रीज़ बाहर गए तो विंड्स आर मूविंग फास्ट टुवार्ड्स द ट्रीज बिकॉज विंड इज़ कमिंग टू मीट दैम। तो यहाँ पे विंड का फिर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विंड्स क्या कर रही है? पेड़ों को ग्रीट करने आ रही है, उनसे मिलने आ रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। यहाँ पे वापस हमारा सिमिली है। कैसे? हाउ द मून कैन बी ब्रोकन। सी, आफ्टर गोइंग इन टू द फॉरेस्ट, ऑल द ट्रीज स्टूड देयर स्ट्रेट in the forest.
So its branches cover the moon, due to which it looks like a broken mirror. Suppose this is a moon and these are the trees, so these branches are moving and they are covering the moon. So this moon is looking like a broken mirror. Okay, the broken pieces of the moon are shining and they are seeming just like a crown of the tallest oak tree. ये जो पोएम है ये मेटाफर भी है, ये मेटाफर है विच कंपेयर द ट्रीज टू वीमेन, बिकॉज द पोइट इज़ अ फेमिनिस्ट एंड शी हाईलाइट्स द डिज़ायर ऑफ अ वुमन टू बी फ्री फ्रॉम दिस patriarchal society and go out in the open, as tree wants to free themselves from the floor of the house and go in the open forest. एज ए मेटाफर ये पोम ह्यूमन बींग्स को भी रेफर्ड है। वो ह्यूमन बींग्स जो सफोकेटेड फील करते हैं, वो फील सैड अंडर द ऑपरेशन एंड डिपेंडेंस, जैसे कि हमने नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, सो दे ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन देयर लाइफ. They also rebel against the oppression, slavery, and exploitation to be free and be on their own. So I hope you got this. Still, if you have any problem, just message me in my comment box.